ذہنی آزمائش آ گیا، العلم نور، ذہنی آزمائش آ گیا، العلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اس میں ہم سب موجود ہیں. سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ، اور ہم علم دین سیکھتے چلے جا رہے ہیں. آج بھی 2 ٹیمیں ہیں اور آج 7واں سلسلہ ہے. 6 ٹیمیں آگے پہنچ چکی ہیں. ایک ٹیم آج انشاءاللہ پشاور خیبر پختونخوا سے ہوگی اور ایک انشاءاللہ پنجاب کے شہر چشتیاں سے. دیکھنا یہ ہے دونوں ٹیموں کی تیاری کیسی ہے. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ رہیے. علم دین حاصل کرنے کی نیت سے سوالات ہوتے رہیں گے، جوابات ملتے رہیں گے اور انشاءاللہ انعامات بھی تقسیم ہوں گے. آئیے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے جگہ پر تشریف رکھیں. بے قراری سے ہمیں رہتا ہے اس کا انتظار، اس کا ہر ایک مرحلہ بھی کس قدر ہے. اس سے پہلے کہ دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کیا جائے، آئیے ناظرین، کل جو مقابلہ ہوا تھا، گزشتہ کل خیبر پختونخوا ہی کی ٹیم تھی سوات اور لاہور کے درمیان. مقابلہ کیسا رہا، نتیجہ کیا رہا، آئیے دکھاتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش سیزن 17. علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی کتنی اور کون کون سی صورتیں ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1 افعال میں اتباع، اقوال میں اتباع، اخلاق میں اتباع، افعال میں اتباع، اقوال میں اتباع، اخلاق میں اتباع اور عقائد میں اتباع. جواب درست دے دیا ہے. تو سوزے بلال آقا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ویسے قرنی ہو. جواب درست دے دیا. باری ہے اسامہ کی، لاہور سے تعلق ہے. تیمم میں صرف 2 فرائض ہیں. غلط. لفظ داؤد کے 4 حروف ہیں. صحیح. مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے چچا ہیں. غلط. جنگ میں حضرت بابا بلے شاہ کا مزار ہے. غلط. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. صحیح. جناب اسامہ نے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. آج کا مقابلہ لاہور والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. اچھا مقابلہ کیا سوات والوں نے. ایک وقت تو ایسا لگا کہ سوات کی ٹیم لگتا ہے کل جس طرح بلوچستان نے اسلام آباد والوں کو پیچھے چھوڑا، آج سوات والے آگے بڑھ جائیں گے. مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. سوات کے اسلام میں دل چھوٹا نہ کریں، آپ کو موقع ملے گا. جی ناظرین الحمدللہ، کل سوات والے پیچھے رہے، لاہور والے آگے گئے، مگر آج پشاور یا چشتیاں دائیں طرف پشاور والے ہیں. آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. نام بتائیں گے، کیا مصروفیات ہے یہ بھی بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان رضا طاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد عمران طاری ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ پشاور میں درجہ خام ثانی 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد معیز علی اور والد محترم کا نام سلیم عباس ہے. میرا تعلق پھولوں کے شہر پشاور سے ہے اور میں پی جی سی ہدف کالج میں 2nd ایئر CS ڈپارٹمنٹ کا طالب علم. ماشاء اللہ. چلیں جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عطا اللہ ہے. میرے والد صاحب کا نام کفایت اللہ ہے. میرا تعلق پشاور سے ہے اور میرا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. میں نے انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر میں MS کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا ٹیچنگ کرتے ہیں؟ جی ٹیچنگ. ماشاء اللہ. تو استاد صاحب کا کیسے ذہن بن گیا ذہنی آزمائش کے حوالے سے؟ تو میرا ایک بھائی دعوت اسلامی میں ہیں تو انہوں نے ذہن دیا اور آپ آڈیشن میں آئے اور سلیکٹ بھی ہو گئے. الحمدللہ. آئیے نا، آپ 3 ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ٹیم میں پشاور کے، تینوں کے الگ الگ شعبے ہیں. کیسے سلیکٹ ہوئے، کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں.
آج آڈیشن ہے پشاور کا. جی ہاں, کثیر تعداد میں عاشقان رسول آڈیشن دینے کے لیے تشریف لائے ہیں. ذہنی آزمائش آیا, رب کی رحمت ساتھ لایا, علم خزانہ ہاتھ آیا, ذہنی آزمائش آیا. خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ کیا ولیوں کو اس میں سے کچھ لاحق ہوتا ہے؟ چونکہ خوف جو ہے نا یہ ڈر کو کہتے ہیں اور غم بھی, لیکن جو گزرے ہوئے اعمال پہ ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں, اور جو مستقبل کے لیے کوئی بات کسی بات پر افسوس ہے تو وہ خوف ہوتا ہے. اور اولیاء اللہ کو خوف اور غم نہیں ہوتا. کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں, تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں. تیری کفش پا پر نثارا کروں میں. مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کشف پا پر نثارہ کروں میں. حاضرین و ناظرین ہو جائیں تیار سارے, حاضرین و ناظرین ہو جائیں تیار سارے, حاضرین و ناظرین. ماشاء اللہ. پشاور والے کیسے سلیکٹ ہوئے آپ نے دیکھا. ہماری بائیں طرف چشتیاں کے اسلامی بھائی ہیں, باری باری اپنا نام بتائیں گے, اپنی کیا مصروفیات ہیں بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد یار ہے اور میرے والد محترم کا نام اللہ یار دلتانہ ہے. میرا تعلق لڈن ڈسٹرکٹ وہاڑی سے ہے اور میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز کر رہا ہوں. بیٹا کیسے ذہنی آزمائش کا کیسے ذہن بن گیا آپ کا؟ ایکچولی گھر میں بھی مدنی ماحول ہے اور میرے پیرنٹس اسپیشلی میرے ماموں جان ہیں, ان کی یہ خواہش تھی کہ میں ادھر آؤں کیونکہ وہ نگران ہیں وہاں پہ اچھا تعویذات کے. اللہ دی تعالی. اور آپ سلیکٹ ہو گئے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. احمد یار بھائی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبداللہ طاری ہے. میرے والد صاحب کا نام عبد المجید ہے. میں بیسکلی فوٹاباس کا رہائشی ہوں اور میں جامعۃ المدینہ چشتیاں شریف مکی مسجد میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. اگلے اسلامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا ہے اور میرے والد محترم کا نام محمد امیر اطاری ہے. میں جامعۃ المدینہ مکی مسجد میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا بیسکلی تعلق بھی چشتیاں شریف سے ہے. چلے جناب, چشتیاں سے جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 17 کے آڈیشن کی ٹیم سفر کرتے کرتے آج پہنچ چکی ہے پنجاب کے شہر چشتیہ شریف. ذہنی آزمائش آیا, رب کی رحمت ساتھ لایا, علم خزانہ ہاتھ آیا, ذہنی آزمائش آیا. سیزن 17. نماز جنازہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. سبحان اللہ. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایریاں, ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج, اور جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر, کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے دعوت اسلامی کی, کیا بات ہے مدنی چینل کی. مختلف شعبوں سے تعلق ہے مگر دعوت اسلامی سے, مدنی چینل سے پیار ہے. آڈیشن میں ہمارے پاس بہت ساری اس طرح کی ڈیٹیل آتی ہیں کہ ڈاکٹرز, انجینئر, دوسرے اسکولوں کالج کے اسٹوڈنٹس, تاجران اور دنیا کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سنی جامعات کے اسلامی بھائی, یقیناً دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے اسلامی بھائی آڈیشن دینے آتے ہیں. اور کبھی کبھی جی تو چاہتا ہے کہ مختلف شعبوں کی نمائندگی ہمارے منچ پہ ہو, لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسلامی بھائی بھی ذہین ہو, تیاری بھی وہ کر سکیں تاکہ اپنی ٹیم کو آگے لے جا سکیں. بہرحال مرحبا کہیں گے چشتیاں والوں کو بھی, پشاور والوں کو بھی. آگے جانا ہے مگر کل آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا, اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی کی طرف چلتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, جو سوال آپ سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ 4 پشتوں کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں. تو اس کا جواب ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے پاس جو نام آئے ان میں محمد ارسلان اتاری گجر خان, بنت مشتاق اتاریہ بھاولپور, بنت لطیف اتاریہ, محمد طیب علی مرتضی اتاری گجرانوالہ, غلام الیاس اتاری سکردو, بنت محمد ظہیر عباس اتاریہ حافظ آباد, ام کامران ملتان, بنت غلام محمد منیر حسین اتاری سید والا, محمد عظیم اتاری ہری پور, بنت محمد جعفر اتاریہ سمن آباد کراچی.
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। हाफिज़ाबाद से बिनते मोहम्मद ज़हीर अब्बास अत्तारिया, आप अपने महरम के ज़रिए से रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचाया जाएगा। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश का सिलसिला जारी है और अब वक्त हुआ है आज के सवाल का। ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन का सवाल। अगर अभी तक आपने ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें। सवाल यह है, हज़रत सैयदना आदम अला नबीना वालिस्सलाम ने जन्नत में कितना अरसा क़याम फरमाया? वेरी यूनिक क्वेश्चन। 100 साल, 4 ऑप्शन है, 100 साल, 250 साल, 1000 साल या 500 साल। जवाब कहां से मिलेगा ये भी बता देता हूं। माहनामा फैजान मदीना दिसंबर 2021 में इसका जवाब आपको मिल जाएगा और शायद आज बहुत सारे नाजरीन को ये यूनिक मालूमात हासिल होगी। अच्छा जनाब, अब सवाल है जिसका जवाब आपने SMS के जरिए देना है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की दादी का नाम बताएं। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की दादी जान का नाम आपने बताना है और इंशाअल्लाह मैसेज करना है। प्रोग्राम के आखिर में इंशाअल्लाह कुरानदाजी की जाएगी। अब वक्त हुआ है आपको ये बताएं कि आज का सेगमेंट आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं। इल्म नूर है, इश्क के बोल, 1500वां जश्न विरादत, फिक़ह हनफी और उसके दलाइल तलाश कीजिए, कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे पेशावर वालों से, शैतान का फंदा क्या है? शैतान का फंदा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान का फंदा दुनिया और दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ है। सिर्फ वही इससे महफूज होते हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल से है। इसके अलावा दुनिया की हर चीज़ शैतान का फंदा है। दुनिया का माल और दुनिया की दौलत वगैरह सब चीज़ें शैतान का फंदा है। अल्लाह पाक और उससे ताल्लुक पैदा करने वाली चीजों के अलावा दुनिया की हर शय शैतान का फंदा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शैतान के मकासद क्या हैं? सेकंड्स गुजर रहे हैं, मशवरा जरूर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान के मकासद दरज़ैल हैं। शैतान के मकासद में से ये है कि शैतान हमेशा हमेशा इंसान को जहन्नम में धकेलने की कोशिश करता है, उसको जुल्म और ज़्यादती का मुजस्समा बनाता है और उसे नेकी के काम से रोक कर आला दर्जात से गिरा देता है। और एक अल्टीमेट सबसे बड़ा जो उसका मकसद है, इंसान से क्या छीनना है? उसने उसका ईमान छीनता है। इंसान का ईमान छीनना, हमेशा के लिए उसे जहन्नम में धकेलने की कोशिश करना, ज़ाहिरी फिस्को फजूर में मुब्तला करना, जुल्म व ज़्यादती का मुजस्समा बनाना। नाज़रीन, ये शैतान के अल्टीमेट गोल हैं, ये उसके मकासद हैं। अल्लाह हमें शैतान के वारों से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए नमाज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल अब्बास रहमतुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फ़वैलुल लिल मुसल्लिन और अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साहून के अलावा हर जगह एक खुशखबरी के साथ वईद सुनाई गई है और सिवाय और हर जगह वईद के साथ खुशखबरी सुनाई गई है, सिवाय हर जगह खुशखबरी के साथ वईद के साथ खुशखबरी सुनाई गई है। तो जो शख्स नमाज नहीं, तो जो शख्स अल्लाह की याद को बुलाकर नमाज पढ़ता है तो उसको वईद सुनाई गई है। तो जो नमाज न पढ़े तो उसका क्या आलम होगा? हज़रत आप रहमतुल्लाहि ताला से सवाल किया कि नमाज क्या है, तो आपने फरमाया अल्लाह पाक के साथ कलाम करना और दुनिया से अपना हर ताल्लुक कता कर देना और अल्लाह ही को जानना। आपसे सवाल किया गया कि नमाज क्या है, तो जवाब में इरशाद फरमाया बंदे का अल्लाह पाक से इस तरह मुलाकात करना
کہ وہ अल्लाह पाक के सिवा किसी को न जानता हो। जवाब प्रॉपर आपने नहीं दिया इसलिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ बड़ी कमाल की बात की है कि नमाज ऐसे पढ़े, अल्लाह पाक से इस तरह मुलाकात करना कि वो अल्लाह पाक के सिवा किसी को ना जानते। नमाज पढ़ते वक्त ये ख्याल बन जाए कि वो अल्लाह से गोया मुलाकात करने जा रहा है। बारी है चिश्तिया वालों की, जुल्म कितनी तरह का होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म 2 तरह का होता है। नंबर 1 के नुकसानदेह बुराई का इर्तिकाब करना, यानी अपनी जान पर जुल्म, नुकसानदेह बुराई का इर्तिकाब करना। और नंबर 1 है अपनी जान पर जुल्म, यानी कि खुद को नेकी के काम से रोक कर नुकसानदेह बुराई का इर्तिकाब करना। नंबर 2 किसी की जान पर जुल्म, यानी उसका हक रोक कर कोई ऐसा काम करना जिससे उसकी हक तलफी हो, उसको नुकसान हो। जनाब, अपनी जान पर भी जुल्म होता है कि बंदा गुनाह करके, बुराइयां करके, नेकियां छोड़ के अपनी जान पर जुल्म करता है। और दूसरे पर जुल्म यह है कि उसका हक उससे रोक कर कोई ऐसा काम करना जिससे उसे नुकसान होता हो। अल्लाह हम सबको अपनी जान पर जुल्म करने से भी महफूज फरमाए, दूसरों पर भी जुल्म करने से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शैतान की बात हो रही है। बताइए, शैतान हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से किस कदर डरता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि शैतान हजरत उमर फारूक को देखकर अपना रास्ता बदल देता है। क्या बात है सैयदना उमर फारूक की। हदीस में आता है, जिस रास्ते पर हजरत उमर चलते, शैतान उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ईमान के एतबार से मोमिन के कितने दर्जे हैं? जनाब जल्दी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान के एतबार से मोमिन के 2 दर्जे हैं, एक है आला दर्जा और एक है अदना दर्जा। अदना दर्जा ये है कि वो मोमिन जो मार्फत और आखिरत की तलब से दूर रहते हैं। नंबर 2 ये दर्जा उन कामिलीन वासिन का है जो ना सिर्फ वसल की लज़्ज़ों से आशना होते हैं बल्कि बारगाह इलाही में मुकर्रब भी होते हैं। और इनकी करीब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वहदहू ला शरीक होती है, वो हर वक्त इसकी जुस्तजू में पड़े रहते हैं। जनाब, मोमिन के ईमान के लिहाज से 2 दर्जे, एक तो अदना दर्जा जो आम मुसलमानों का है, और एक आला दर्जा यह है जो अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह मुझे और आपको ईमान का कामिल दर्जा नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, ये 3 सवाल तो हो गए हैं, मगर अब सवाल अलग से हैं, सिलेबस से हटकर भी है, और इस बार हमने कुछ और भी फर्क डाला है। जनाब, बारी पेशावर वालों की है। अब मौजू जो है आपके सामने चलते रहेंगे। जब आप स्टॉप कहेंगे तो स्क्रीन पर जो मौजू आएगा उसमें उसके मुतालिक आपसे सवाल होगा। जनाब, स्क्रीन पर मौजू दिखाए जाए और उसके बाद लफ्ज स्टॉप आप कहेंगे तो वो मौजू आपके सामने रुक जाएगा। जी स्टॉप। चले जनाब, स्टॉप हुआ है जनरल नॉलेज की तरफ। पहली बार शायद हमारे इस सिलसिले में जनरल नॉलेज पर सवाल हो रहा है। चले, आपके पास तो एजुकेशनिस्ट हैं, होपफुली जवाब मिल जाएगा। बताइए जनाब, सबसे अफजल चौपाया कौन सा है? अच्छा, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ऑप्शन ले लें या आप ऑडियंस से मदद दे लें। सबसे अफजल चौपाया, 4 पैर वाला जानवर और सबसे अफजल भी हो। सुभान अल्लाह, यूनिक क्वेश्चन है। ऑप्शन दीजिए जनाब। बकरी, घोड़ा या ऊंट? ये भी तीनों बड़े यूनिक हैं। बकरी है, घोड़ा है या ऊंट है। एक सवारी के काम आता है, एक दूध के काम आता है, और एक गज़वे में, जंग में भी काम आता है। जल्दी कीजिएगा। घोड़ा सेकंड। इनका कहना है घोड़ा। बताइए अफजल चौपाया कौन सा है? जनाब, घोड़ा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है चिश्तिया वालों की। सेलेक्ट कीजिए जनाब। स्टॉप कहेंगे जवाब, तब वो रुक जाएगा। स्टॉप।
स्टॉप आ गया है कुरान पाक पर। चले जनाब, क्या सवाल है? अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों पर कुल कितनी सूरतें हैं? अब आप चाहें तो ऑप्शन ले, चाहें तो नाजरीन से मदद ले लें। नाजरीन से मदद लेंगे। मदद लेंगे, चले आप किससे मदद लेंगे? सामने इस्लाम भाई से। अच्छा, हाजरीन से, इनसे लेंगे मदद। भाई चले माइक लेकर आए। लगता है हाफिज साहब है और सूरतें पता है कुरान पाक में अंबिया के नाम पर कितनी है। जी चले भाई, मददगार को जरा स्क्रीन पर लाएं, माइक भी लेकर आए और अब देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं। बताइए अंबिया के नाम पर कितनी सूरतें? पहले अपना नाम बताएं, कहां से आए हैं? मोहम्मद अनीस अताई, जामिअतुल मदीना सगीरा मदीना मुल्तान शरीफ। मुल्तान से आए हैं और चिश्तिया वालों की मदद कर रहे हैं। जी जनाब, 8 सूरतें हैं। 8 सूरतें। चले जनाब बताइए, आप इनके जवाब के साथ जाएंगे? जी डन। 8 डन कर रहे हैं भाई। चले बताएं भाई, 8 सूरतें हैं कि नहीं? 8 नहीं, 6 सूरतें हैं। 6, 5 और 10 का ऑप्शन था। ये वाले भाई ने तो ऑप्शन के भी बाहर का जो है वो जवाब दे दिया है। गलती हो गई है, मददगार मदद नहीं कर सके, कोई बात नहीं, हो जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन जनाब चले जनाब, अब बारी पेशावर वालों की है। ऑप्शन दिखाइए। चलें स्टॉप। स्टॉप में अब क्या आया है? मौजू अंबिया किराम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? ये तो आसान सवाल आ गया है, लेकिन जनाब ऑप्शन चाहे तो ले लें, मदद चाहे तो ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बगैर ऑप्शन के जवाब दिया। अगर ऑप्शन लेते तो क्या होता, जरा पहले ऑप्शन बताइए। हजरत आदम, हजरत इदरीस, हजरत नूह, इन्होंने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पेशावर वाले कम बैक करते हुए फिर बारी है चिश्तिया वालों की। जनाब स्टॉप। जनरल नॉलेज पर आकर रुक गया है मामला। यहां भी कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो हैं, देखें कैसे जवाब देते हैं। बताइए जनाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? ऑप्शन लेंगे, अब किसी से मदद नहीं लेंगे। चले जनाब ऑप्शन बताइए। मुल्तान, कोटरी या सक्खर बैराज? सक्खर बैराज। सक्खर बैराज इनका कहना है। क्या ये बात दुरुस्त है? बताइए जनाब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज सक्खर बैराज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, यहां तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है, कभी इधर और कभी उधर। अब बारी यहां मौजूद हाजरीन की है। सवाल कीजिए और देखिए क्या जवाब देते हैं। जी अच्छा जी, सवाल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक अरब के किस खानदान से था? अच्छा, जवाब वो देगा जो 12 दिन के मदनी काफिले में जाए और वो भी तारीख के साथ जवाब दे। सीधे 12 दिन? क्या बात, 12 दिन। क्या बात। सुभान। जी जनाब। मेरा नाम मोहम्मद जवाद अत्तारी है। मेरा ताल्लुक कसूर शहर से है, दर्जा खामसा से। कुरैश। जी माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक अरब के मशहूर व मारूफ और मुअज़्ज़ज़ जो ख़ानदान है, ख़ानदान कुरैश, उससे है। और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बड़ी प्यारी किताब, अब्दुल हबीब भाई आप इस किताब के बारे में भी बताएंगे। ए लोगो, ये मुफ्ती कासिम साहब की है, ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। कुरान पाक की वो आयत है जिसमें अल्लाह करीम ने ए लोगों कहकर, या अय्युहन नास कहकर मुखातब किया है। इन आयतों को अलग किया गया, इनका तर्जमा, इनकी तफसीर, इसमें पैगाम पढ़ने से ताल्लुक किताब है। वन ऑफ द यूनिक बुक फॉर कुरान पाक, जरूर हासिल कीजिए, चाहे तो दावतिस्लामी.net से डाउनलोड कर लीजिए। आइए जनाब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि कुरान पाक में किसे सबसे बड़ा परहेजगार जो है कहा गया है? सबसे बड़ा परहेजगार। सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा परहेजगार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कराची से रिहायश रखता हूँ और जामिअतुल मदीना कंजुल ईमान दरिया सानिया का तालिब इल्म हूँ।
कुरान पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाया गया है। अच्छा जी, एक इशारा दे दें, गालिबन एक सहाबी रसूल की तरफ आपका इशारा है ना जी। और ये सिलसिले के शुरू में सवाल भी हुआ था। हाँ, कौन? एक सहाबी रसूल की तरफ इशारा है जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जवाद हसन अतारी है। सवाल का जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बगदाद शरीफ की तस्बीह तोहफे में दी जाएगी। आशिक अकबर सैयदना सिद्दीक अकबर को कुरान मजीद ने, ज़ाहिर है ये उम्मतियों में सबसे बड़ा परहेजगार, यानी सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे बड़े परहेजगार जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह पाक को तुर्बत सैयदना सिद्दीक अकबर पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाज़िल। माशाअल्लाह, हमारे साथ यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, तो इनसे भी एक सवाल चले, इजाजत हो तो। जी बिल्कुल करें। अच्छा जी, मदनी चैनल के कोई भी 5 सिलसिलों के नाम बताएं। 5 सिलसिले जी, ये दोनों बताएंगे, दो। अच्छा, फिर आधा आधा तो 4 हो गए ना। बाद में आधा आधा बताएंगे। चलो मिलके बता दें। मेरा नाम मोहम्मद हुनैन है और मेरे वालिद का नाम मुस्तफ़ा मुईज़ है। जी। ज़हनी आजमाइश, मदनी मुज़ाकरा, अच्छे बच्चे, खुले आम, सल्ले अला कहते कहते। 5वां दोनों मिलके बता दें। ख्वाबों की ताबीर है। क्या बात है, अल्लाह करे आज आप दोनों को बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब, मदीने के ख्वाब आ जाएं। क्या बात, इंशाअल्लाह इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इतर तोहफे में दिया जाएगा। चले माशाअल्लाह, चले दोनों बच्चों को मुबारक हो। आइए नाज़रीन, कुछ कॉल शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। अल्लाह दिता तारी लुडन्स जिला विहाड़ी से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब्दुल हबीब भाई मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश अपनी बहारें लुटा रहा है। अल्लाह करीम आपको और पूरी ज़हनी आजमाइश की मजलिस को दीनों दुनिया की बलाइयाँ नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आज मेरा भांजा अहमद यार भी मंच पर मौजूद है और बाकी दोनों टीमों वाले भी हमारे भाई ही हैं। अल्लाह करीम इन सब को हक में बेहतर फैसला फरमाए और इनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल का। अगली कॉल दीजिएगा। हिंद में तेलंगाना के शहर आदिलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई का सिलसिला कितना प्यारा, ज़हनी आजमाइश सालों साल जिसका इंतज़ार रहता है। माशाअल्लाह बहुत खुशी होती है देखकर। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुसूसी तौर पर अब्दुल हबीब भाई को दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? 8 नंबर है चिश्तिया के, 9 नंबर है पेशावर वालों के। अगला सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा। मुश्ताक तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है, मुश्ताक तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है। सवाल करेंगे पेशावर वालों से, उन्हीं का मुंह सब तकेंगे, उस दिन जो वो करेंगे वो काम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हीं का मुंह सब तकेंगे, उस दिन जो वो करेंगे वो काम होगा। दुहाई सब उनकी देते होंगे, उन्हीं का हर लब पे नाम होगा। उन्हीं का हर लब पे नाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अना लहा कह के आसियों को वो लेंगे आगोश मरहमत में। अना लहा कह के आसियों को वो लेंगे आगोश मरहमत में। अजीज इकलौता जैसे माँ को उन्हें हर एक यूं गुलाम होगा। हाय हाय, क्या प्यारा शेर है। अजीज इकलौता जैसे माँ को कैसा इकलौता बच्चा अजीज होता है। क़यामत के दिन क्या हाल होगा कि अना लहा, और तो अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे आका क्या करेंगे, अना लहा कहकर आसियों को वो लेंगे आगोश मरहमत में। अजीज इकलौता जैसे माँ को उन्हें हर एक यूं गुलाम होगा। हर गुलाम से इतना प्यार फरमाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا. نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو. کیا خوبصورت بات ہے. نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، یعنی سوتے وقت بھی جس انداز سے سنت کے مطابق سونا ہے، تو اگر غور کریں تو لفظ محمد بنتا ہے نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو. جواب درست دے دیا ہے. نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو، نام محمدی بنے جسم میں نظام دو. نام خدا مرکعہ، نام خدا رخ حبیب. نام خدا مرکعہ، نام خدا رخ حبیب، بینی الف ہے ہا دہن زلف دوتا ہے لام دو. کیا بات ہے. نبی پاک کے چہرے سے کیسا اللہ لفظ اللہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نام خدا مرکعہ، نام خدا رخ حبیب. اب کیسے بیان کر رہے ہیں؟ بینی یعنی ناک مبارک الف ہے، ہا دہن اور زلفیں دو لام ہیں. گویا لفظ اللہ چہرہ مصطفیٰ سے کیسے ظاہر ہے. جواب درست دے دیا ہے. نام خدا مرکعہ، نام خدا رخ حبیب، نام خدا مرکعہ، نام خدا رخ حبیب، بینی الف ہے ہا دہن زلف دوتا ہے لام دو، بینی الف ہے ہا دہن زلف دوتا ہے لام دو. مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے. مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا. اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی. تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی، ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا. ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا. ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو. ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو، تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لے. کیا بات ہے. نبی پاک کا نام لینے والا کیسے دوزخ میں جائے گا؟ تو گناہ گاروں کو یہ نسخہ مل گیا ہے کہ سرکار کا نام لیتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، ان کی باتیں کرتے رہیں اور دوزخ کی آگ اپنے اوپر حرام کر لیں. ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو، تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو، ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو، تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا، تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے،
کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. کیا خوبصورت بات کی ہے کہ نبی پاک کو رب نے ایسا حسین بنایا کہ دشمن غیر مسلم بھی آتے تھے اور چہرہ دیکھ کر کہتے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. نبی پاک کو دیکھتے اور کلمہ پڑھ لیتے. کیا خوبصورت بات کہی کہ تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے. دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. جناب پشاور والوں کی اب باری ہے اور اب شعر دکھایا جائے گا اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. دکھائیے جناب. اور درست بتانا ہے, لفظ ب لفظ درست بتانا ہے. پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو, سنانا داستان غم تم رو کر مدینے میں. سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. سنانا داستان غم میری رو رو کر مدینے میں. تینوں میں سے کون سا درست ہے؟ جلدی کیجئے گا, سیکنڈ ختم ہو رہے ہیں. سیکنڈ والا. سیکنڈ والا, سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو. پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو. سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. باری ہے چشتیاں والوں کی. دکھائیے شعر. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد, کتنا ہے پیارا پیارا میٹھے نبی کا روزہ. کتنا ہے مہکا مہکا میٹھے نبی کا روزہ. کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ. تینوں ہی بڑے پیارے ہیں مگر ایک اس میں درست ہے جو امیر اہل سنت نے لکھا ہے. اور یاد رہے کہ یہ غالباً سلیبس سے ہٹ کے شعر ہے. جلدی کیجئے گا. سیکنڈ کہہ رہے ہیں کتنا ہے مہکا مہکا میٹھے نبی کا روزہ. سچی بات ہے, یہ بھی درست ہے کہ مہکا مہکا بھی ہے, لیکن جو شعر ہے وہ ہے کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ. غلطی ہو گئی ہے. اللہ پاک آپ کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. شعر سنائیے گا. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد. کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ. کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ. ماشاءاللہ. اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ناظرین حاضرین کی طرف جائیں گے؟ جی جی حاضرین سے لیکن سوال. ہم اس سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے. جی جی. اب آپ پیچھے مائک رکھا ہوا آپ کے, ایک شعر آپ کی پسند کا آپ سے سننا ہے. اچھا میری پسند کا سننا ہے. چلیں جی بتائیے کیا سننا ہے. فرمائش تو یہ آئی کہ اگر ذہنی آزمائش کا جو نیو کلام ہے اس کا اگر ایک دو شعر آپ سنا دیں. آج میرا جو ہے نا ویسے بھی گلا اس قابل نہیں ہے, اور ذہنی آزمائش کا کلام جو ہے نا وہ ظاہر ایک ہی بار پڑھا ہے, بار بار تو پڑھنے کا موقع ملتا نہیں ہے, وہ میں شاید نہ پڑھ سکوں. آپ سنیں اس کلام کو, بہت پیارا کلام لکھا بھی گیا اور اللہ کی رحمت سے اپنی پسند کا کوئی شعر سنا دیں.
असल में पसंद में भी है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, हर वक्त की कैफियत अलग होती है। किसी वक्त बंदा किस कैफियत में होता है तो उस वक्त कुछ पसंद आ रहा होता है, किस वक्त कुछ कोई और कैफियत होती है, कुछ और पसंद आ रहा होता है। अभी क्या कैफियत है आपकी? हमारा अब किसी सूरत यहाँ पर दिल नहीं लगता, हमारा अब किसी सूरत यहाँ पर जी नहीं लगता, सवाले जाओड़ा कर उनके कूचे में, हमें बादे सवाले जाओड़ा कर उनके कूचे में। अल्लाह करीम आपको इसी साल बार बार मदीना मक्का की हाजिरी मुर्शिद के साथ नसीब फरमाए। चलिए जनाब, यहाँ मौजूद अब इस्लामी भाइयों की बारी है। उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे। अल्लाह, इसी कलाम का शेर है। बात छेड़ी गई है तो चले फिर इसी मौजू को लेके चलते हैं। उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे। मोहम्मद मकसूद रजा अत्तारी। उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे, जमाने की निगाहों से छुपाकर उनके कूचे में। जमाने की निगाहों से छुपाकर उनके कूचे में। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। इनको एक बड़ी प्यारी किताब कुफरिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, ये किताब इनको तोहफा। ये किताब तो हर घर में होनी चाहिए। आजकल जो हालात है इसमें मालूम होना चाहिए। मजाक मजाक में दोस्तों के साथ बैठकर फजूल बातें करते हुए ऐसे ऐसे लोग जुमले कह जाते हैं। तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक, ईमानियात की अहमियत के लिहाज से ये किताब जरूर आप चाहें तो मकतबतुल मदीना से इसको सिर्फ 740 रुपये हदिये पर इसको तलब कर सकते हैं, और आप चाहें तो dawatislami.net से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। जनाब एक और शेर सुनाइए। हाँ, समझेंगे हमने आजी उनकी करम नवाजी। अरे इतने छोटे मुन्ने सुनाएंगे, क्या बात है। जी चलो ठीक है, अच्छा सीट पे खड़ा कर लिया जी, चले। जिस दिन हुए रवाना सरकार का मदीना, जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में। ठीक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्तबा। मोहम्मद मुश्तबा, माशाल्लाह। समझेंगे हमने आज, समझे इंशाअल्लाह करम नवाजी जरूर होगी और जल्द होंगे रवाना सरकार की गली में। एक कॉल लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मेरा नाम इश्कात अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मैं आपको ये ना सुनाऊंगी। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। वाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम 1500 साल बाद आए हैं मगर उनके ख्यालात, उनके तसव्वुरात, उनकी बातें सीने में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा आपने शेर सुना। एक और कॉल दीजिएगा।
मेरा नाम मोहम्मद अरहम है, मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आपके ये जो सेगमेंट है ज़हनी आज़माइश, ये बहुत अच्छा है। हमारे सारे घर वाले बहुत खुशी से इसको देख रहे हैं। इसमें से हमें काफी इल्म भी हासिल हो रहा है, और आगे आपने ये सवाल आज पूछे उसमें भी हमें काफी इल्म हासिल हुआ। आप बहुत शुक्रिया। चलिए जरा आप देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 16 नंबर है चिश्तिया के, 19 नंबर है पेशावर के। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है 1500वां जश्न विलादत। जनाब बारी है पेशावर वालों की, तशरीफ लाएंगे यहां पर और इस बोर्ड में से कोई एक बॉक्स खोलेंगे, देखते हैं क्या बताना है, और 15 नाम लेने हैं 1 मिनट के अंदर। जनाब सुभान अल्लाह, क्या है इसके अंदर? पाक के 15 नाम, मदीना पाक के 15 नाम। सुभान अल्लाह, मदीना पाक की क्या बात है, जिक्र मदीना होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। मदीना, तौबा, तय्यबा, तौयबा, अर्दुल्ला, अर्दुल हिजरा, इकालतुल बलदान, जजीरतुल अरब, और हबीबा, महबूबा, और जबारा, और हरम रसूल हसना, बैत रसूलिल्लाह। जरा तकरीबन जवाब पूरा कर दिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मदीना दिखाए। चिश्तिया वालों की बारी है। जनाब बॉक्स खोलेंगे आकर, कौन सा बॉक्स खोलेंगे? 4 नंबर खोलेंगे जनाब। बताइए 4 नंबर के अंदर क्या है? असहाबे बदर के नाम। असहाबे बदर के नाम। ये माइक लीजिए, मुझे ये दे दीजिए, सीधे हाथ से दीजिए। चले जनाब, माशाअल्लाह। 15 असहाबे बदर के नाम। वक्त आपका शुरू होता है अब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत हमज़ा, हज़रत ज़ैद बिनते हारिसा, हज़रत ज़ैद बिनते हारिसा, अबू महसन और सालिम, अभी भी आधा मिनट है, गौर कर ले। 8 हो गए गालिबन। हजरत ज़ैद बिनते हारिसा नहीं, ज़ैद बिन हारिसा है। चलिए आगे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद, 15 सेकंड बाकी हैं। बाज़ औक़ात याद होता है मगर लाइव सिलसिला और घड़ी चल रही हो तो बंदा गड़बड़ कर जाता है। कितने हो गए? वक्त आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आपने फिर भी 7 से ज्यादा बताए, 1 नंबर आपको मिलेगा। अच्छी कोशिश की आपने। पेशावर वालों की बारी है, तशरीफ लाइए जनाब, और देखते हैं जनाब कौन सा बॉक्स खोलते हैं। पता नहीं होता, कोई भी टॉपिक आ जाएगा और 1 मिनट में 15 नाम लेने हैं। बताइए 1500वां जश्न विलादत, 15 टॉपिक्स। 6 नंबर बॉक्स खोला है। 15 गज़वात के नाम। 15 गज़वात के नाम। वक्त सीधे हाथ से दीजिए, वक्त शुरू होता है अब। ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे हुनैन, ग़ज़वे ओहद, ग़ज़वे खंदक, ग़ज़वे बनी मुतलक, ग़ज़वे बनी कुरैज़ा, ग़ज़वे बनी नुज़ीर, ग़ज़वे बनी सुलैम, ग़ज़वे फ़तेह मक्का, ग़ज़वे मोता, ग़ज़वे तोमतुल जंदल, ग़ज़वे तबूक, कितने हो गए? 12 हो गए। जल्दी करे, 3 और बता दे तो 2 नंबर ले जाएंगे। 1 नंबर तो आपका हो चुका है। ग़ज़वत रिक़ा, नाज़रीन ये हमें भी सोचना है, हमें भी गज़वात याद है कि नहीं। वक्त आपका ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। माशाल्लाह अच्छी कोशिश की आपने। 12 बताएं, 1 नंबर आपको मिलेगा। अब बारी फिर चिश्तिया वालों की है, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि क्या इतनी सारी मालूमात हमारे पास है कि नहीं। बारी है चिश्तिया वालों की। देखिए कौन सा बॉक्स खोलते हैं और क्या नंबर निकलता है। बताइए क्या है इसमें? 15 मसाजिद मदीना। 15 मसाजिद मदीना। माइक लेंगे, सीधे हाथ से लेंगे, और ये मुझे सीधे हाथ से दे दे। माशाल्लाह। मस्जिद मदीना बताएंगे। वक्त शुरू होता है अब। मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, मस्जिद जुमा, मस्जिद गुमामा, मस्जिद नूर, मस्जिद जाबा, मस्जिद फजीह, मस्जिद सजदा,
مسجد سجدہ مسجد 8, 7, 8 تک تو بلا اسٹاپ سارے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے گاڑی رک جاتی ہے۔ آٹھ مسجدوں کے نام غالباً یہ ہو گئی ہے۔ چلے آگے چلے، آگے چلے۔ مسجد قبلتین یہ بھی ہو گئی ہے۔ 2 قبلوں والی ہے تو شاید آپ نے اس لیے 2 بار شاید کہنے کی کوشش کی۔ چلیں جناب، آپ نے کمال ویسے کیا، ایک مسجد کا نام ہی نہیں لیا جس کی وجہ سے ساری دنیا مدینے جاتی۔ مسجد نبوی تو سب سے پہلے ہے، لیکن بہرحال پھر بھی آپ کے 9-10 ہوئے۔ تشریف رکھیں گے، 1 نمبر آپ نے حاصل کیا جناب۔ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، پکا یاد ہوتا ہے بالکل۔ اب تھوڑی دیر بعد ان سے پوچھیں گے، پورے 15 سنائیں گے، لیکن لائیو آ کر جب وقت آتا ہے تو اس وقت بندہ بھول جاتا ہے۔ جناب اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ ایک کال سلسلے میں لیں گے اور پھر اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے۔ سلسلہ دیکھا، اس میں فقہ حنفی اور دلائل ماشاءاللہ زبردست، ایک بہت ہی پیارا کیا گیا یہ سیگمنٹ۔ آج دیکھا بہت خوشی ہوئی، اس طرح کے سلسلے میں شامل کی جائیں انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ جی جناب۔ فقہ حنفی اور اس کے دلائل سیگمنٹ کافی پسند کیا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے مفتیان کرام بھی اس کو پسند کر رہے ہیں، علماء کرام بھی پسند کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم حنفی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام اعظم کا اس معاملے میں موقف کیا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امام اعظم کے اس موقف کے پیچھے دلیل کیا ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 18 نمبر چشتیاں، 22 نمبر ہو گئے ہیں پشاور والوں کے، اور اب آ گیا وہ سیگمنٹ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، فقہ حنفی اور اس کے دلائل۔ دونوں ٹیموں سے انشاءاللہ 2 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال پشاور والوں سے، ظہر کا مستحب وقت کون سا ہے؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ظہر کا صحیح وقت گرمی میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے، اور اس پر دلیل حدیث مبارکہ ہے۔ ایک راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں گرمی کی شدت اگر زیادہ ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرے، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ صحیح حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جب فرض روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے، اس سے متعلق امام اعظم کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک معین روزہ جیسے کہ رمضان کے روزے اور معین دن میں روزے کی منت ماننا، اس میں رات کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ رات کو نیت کر لی جائے، اگر دن میں زوال سے پہلے کر لے تو ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے فرض تھا، اور اس کی اور حدیث پاک میں ہے بخاری شریف کی جس پاک میں ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت آدمی کو حکم دیا کہ یہ اعلان کر دو، صبح کے وقت ایک آدمی کو حکم دیا کہ یہ اعلان کر دو کہ جس نے کچھ کھا لیا ہے وہ دن بھر نہ کھایا، اور جس نے نہیں کھایا وہ روزہ رکھی اس لیے کہ آج عاشوراء کا دن ہے۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے امام اعظم کا موقف سامنے آیا۔ اب باری ہے پشاور والوں کی، کیا میت کی طرف سے روزے رکھنا درست ہے یا نہیں؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک میت کی طرف سے روزے نہیں رکھے جاتے بلکہ فدیہ دیا جاتا ہے، اور اس پر دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی سے کوئی فوت ہو جائیں اور اس کے ہاں 1 مہینے کے روزے ہیں تو اس کے لیے وہ ہر دن
हर तो इसके बदले इसके बदले हर रोजे का मिस्कीन को खाना दिया जाएगा। हर रोजे के मुकाबले में एक मिस्कीन को खाना खिलाया जाए, यानी मैयत की तरफ से रोजे नहीं रख सकते बल्कि फिदिया दिया जा सकता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या एक रात का इत्काफ करना दुरुस्त है? इससे मुतालिक इमाम आजम अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक एक रात का इत्काफ़ नहीं है, क्योंकि इत्काफ़ में रोज़ा ज़रूरी है। इसकी दलील तिरमिज़ी शरीफ की जैसे पाक है, हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि बगैर रोज़े के इत्काफ़ नहीं है। बगैर रोजे के इत्काफ नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये याद रहे कि हमें नफली एतिकाफ तो हम मस्जिद में करते रहते हैं, मगर ये जो सुन्नत एतिकाफ की बात हो रही है तो वो रोज़ा उसके लिए होना ज़रूरी है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस हमने सुनन कुबरा की हदीस सुनी कि बगैर रोज़े के एतिकाफ नहीं है। जनाब बहुत खूबसूरत सेगमेंट कंप्लीट हुआ, फिर स्कोर बोर्ड देखना है, मगर चलिए कुछ कॉल शामिल करते हैं। मैं मुफ्ती इनामुल्लाह चिश्ती साबरी मोहतमिम व नाज़िम मदरसा ज़ियाउल कुरान चिश्तिया साबरिया पेशावर KPK से बोल रहा हूँ। आज का जो पेशावर का जो मुकाबला है इसमें मेरा भाई अताउल्लाह भी पेशावर की नुमाइंदगी कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में बहुत शौक़ और मोहब्बत से ज़हनी आजमाइश के तमाम मुकाबले लोग देख रहे हैं। खुसूसन आज का जो मुकाबला है वो बहुत शौक से लोग इसके इंतज़ार में हैं। सुन्नी जितने मदारिस है हमारे तमाम मदारिस में तुलबा उलमा और अवामिल सुन्नत को पहले से हमने पैगाम भी दिया है। माशाअल्लाह। देखिए ये अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल की खूबसूरती है कि उलमाए किराम मुफ्तियान किराम, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और फिर लोग इस खुशी के साथ देख रहे हैं। पेशावर में आज ज़हनी आजमाइश देखा जाए, आपके भाईजान थे माशाल्लाह और मुफ्ती साहब भी हैं माशाल्लाह, हमारा सलाम भी बहुत बहुत दीजिएगा माशाल्लाह। एक और कॉल दीजिए। हाजी प्यारे प्यारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, मैं मुहम्मद रमजान अत्तारी चिश्तियां शरीफ तो अर्ज गुजार हाँ। आज साडे शहर चिश्तियां दी टीम ज़हनी आजमाइश दे मंच दी जीनत बनी है। ज़हनी आजमाइश नूं 17 साल हो गए ते पर हर वारी एक दूजे तो वध सिलसिले बनते गए ने। ये भी तुहाडे ते अल्लाह पाक दा खसूसी करम है। आज सपोर्ट ते असीं अपने शहर चिश्तियां दी टीम नूं करांगे, पर पेशावर वास्ते भी बखैर रागले ये भी ते साडे ही ने। अल्लाह सानू ज़हनी आजमाइश दे जरिए मजीद इल्म दीन सीखण दी तौफीक अता फरमावे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसीं सानू कॉल कीता माशाअल्लाह। और आखिर में तुसीं यह भी कह दिता कि पेशावर वालों बखैर रागले, ये भी ठीक है ये तो अब्दुल हबीब आपके पुराने कस्टमरों में से हैं, यानी हमारे पुराने व्यूअरशिप में से हैं माशाअल्लाह। 17 सिलसिले माशाअल्लाह हो गए। 17 साल नहीं हुए। ये मैं आपको बता दूं कि ज़हनी आजमाइश शुरू में साल में 2 बार होता था, तो ऐसा मुझे लगता है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 13 साल हो गए होंगे, फिर सालाना हो गया था। तो शुरू के 2-4 बार जो वो सिलसिला साल में 2 बार हुआ। हमने इसकी तारीख तो बताई थी कि पहला कब हुआ था, आज याद नहीं है। बहरहाल चले, ये भी सवाल है, कोई बता दे हमारे नाजरीन में से कि पहला सीजन कब हुआ था, कौन से साल और किस महीने में। तो व्यूवर्स में से बता दे, यहाँ में से किसी को पक्का पता हो तो फिर इंशाल्लाह कॉल कीजिए, बताइए हमें। अच्छा जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। आज आतिफ नहीं आई, शायद वो बता देते जी। 22 नंबर है चिश्तिया के, 26 नंबर है पेशावर वालों के। चलते अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तलाश कीजिए। जनाब आज हमने तलाश को तलाश गुमशुदा बनाया है, थोड़ा सा मुश्किल किया है। आइए पेशावर के इस्लाम में तशरीफ लाएं, मार्कर हाथ में लें, हम आपको बताते हैं कि आपने 30 सेकंड में क्या तलाश करना है। वैसे तो फूलों का शहर है, हम आपसे इसमें से फूल तलाश नहीं करवाएंगे। आपने बकी, जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है उसमें लफ्ज़ बकी को तलाश करना है। वक्त शुरू होता है अब आपका। बकी बा काफ या और आई। क्रॉस में भी देखें, सीधा भी देखें, राइट भी देखें। मैंने तो ढूंढ लिया है, अब आप देखें ढूंढ पाते हैं कि नहीं। वक्त जनाब इन्होंने भी ढूंढ लिया है। देखिए जनाब नाजरीन किस तरह ढूंढा है। बा काफ या और आइन, ये जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है। खुदा की कसम
یہ وہ قبرستان ہے جس کو دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو جنت البقیع نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. چلے جناب باری چشتیاں والوں کی ہے, مارکر اپنے ہاتھ میں لیں گے اور جس طرح بقیع انہوں نے ڈھونڈا ہے مکے کا قبرستان جنت المعالی, وہ آپ تلاش کریں گے. جنت صرف معالی لفظ ہے, میم عین لام یا, معلا. کیا بات ہے, انہوں نے بھی تلاش کر لیا ہے معلا. جواب بالکل درست ہو گیا ہے جناب. اچھا, جنت المعلا میں ایک عظیم صحابیہ کا مزار ہے, کون بتائے گا؟ چلیں مدنی منع بتائیں تو اور اچھی بات ہے. چلیں دیکھیں بھائی, جنت المعلا میں کس عظیم صحابیہ کا مزار ہے؟ یہاں منوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, منا بتا دیں گے. چلیں پیچھے جائیں مائک کے پاس. جی بڑی بات ہے اگر یہ جواب دے دیں. جی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ. حضرت عائشہ نہیں, جنت المعلا میں. جنت المعلا مکے میں ہے نا, تو بہت عظیم صحابیہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد زمان بلوچستان سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل بغداد شریف کی تسبیح تحفے پہ دی جائے گی. ماشاءاللہ. ہمارے عمران بھائی بتا رہے ہیں. چلے عمران بھائی کال آنے دینا, پھر ہم دیکھیں گے وہ پہلا کب ہوا ہے سلسلہ. جناب اب باری آپ لوگوں کی, آپ کی ہو گئی. جی اب دوبارہ, اب زیدی پشاور سے ٹیم چینج, بندہ چینج کریں, اسلامی بھائی تبدیل ہو, اور اب آپ نے عرفات ڈھونڈنا ہے. عرفات. اللہ عرفات کی حاضری بھی نصیب فرمائے. عرفات 9 ذوالحجہ کو حاجی جہاں جاتے ہیں عرفات کے میدان میں, تلاش کیجئے. چلے جناب, وقت آپ کا پورا ہو گیا ہے. عرفات نہیں ملا ہے. اچھا میں ٹرائی کروں, ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ہمیں بھی کچھ آتا ہی نہیں آتا. اچھا جناب, اچھا چلے حاضرین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا مشورہ ہے کہ حاضرین کو بلائیں گے, ابھی بلائیں گے آپ کو, ٹرین اور بیلن کا پورا ہو جائے. چلے چشتیہ کے اسلامی بھائی آئیے اور منا تلاش کریں. یہ لیجئے منا, میم نون اور یا پر لفظ منا. منا. جی جلدی کریں, 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی صحیح ڈھونڈ لیا ہے بھائی, شاباش. اللہ آپ کو منا کی حاضری عطا فرمائے. چشتیہ والوں کو نمبر کی ضرورت تھی, چشتیہ والوں نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہاں اسلامی بھائیوں کی باری ہے. عرفات کون بتائے گا؟ سبحان اللہ. جو 12 دن کا مدنی قافلہ, اور وہ بھی تاریخ دے, پہلے تاریخ. چلیے تو آپ ہاتھ ہی نیچے کروا دیں, تو 3 دن پہ فیصلہ کر لو یار. چلے 3 دن, آج زیادہ ہو جائیں گے. چلے سبحان اللہ. جلدی کریں. ماشاءاللہ. عرفات آجا, جلدی آجا, جلدی آجا, آگے آجا. آپ یہ عرفات تلاش کریں, ہم نعت خواہ سے عرفات والا شعر سنتے ہاں, ہیں. عرفات اور منا دونوں کا کوئی شعر سنا دے بھائی. چلے آ جائیں. پھر میسر مجھے کاش وقوف پہلے ہی لگتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے ڈھونڈ لیا تھا, آتے ہی انہوں نے لکیر کھینچ دی ہے. اب دیکھیں یہ تھوڑا سا مشکل تھا, میں نے بتایا بھی تھا نا کہ اس بار ہم تھوڑا ٹف کر رہے ہیں, تو یہ ذرا ہٹ جائے سائڈ پہ تاکہ ناظرین کو نظر آ جائے. عرفات جو ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو عرفات کی حاضری نصیب فرمائے. جواب درست دیا, تحفہ بھی دیجئے, شعر بھی سنتے ہیں. مجھے کاش وقوف عرفات میں مجھے
क्या बात है मदीने की। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 26 नंबर है चिश्तिया के, 28 नंबर है पेशावर वालों के। आइए कॉल सुनते हैं। अर्ज करना था कि अगर ज़हनी आजमाइश में सिर्फ एक टॉपिक को नमाज के मसाइल के हवाले से सवालन जवाबन हो जाए तो इसमें नमाजों के हवाले से बहुत फ़ायदा होगा, नमाज की गलतियां दूर होगी। तो नमाज के मसाइल में से अगर एक सिलसिला शुरू किया जाए जिसमें लोगों को मसाइल भी समझ आए और ज़हनी आजमाइश का ये हिस्सा भी हो। क्या बात है, बहुत प्यारा मशवरा है, हमारी मजलिस से यकीनन नोट कर लिया होगा। आपके मशवरों का बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। बावल नगर से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आपकी तबीयत नासाज लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसा कि आपको जुकाम हो रहा है। अल्लाह ताला आपको शिफायाबियत आप फरमाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, आप हर चीज नोट कर लेते हैं, दुआ कीजिएगा। अगली कॉल दीजिएगा। ज़हनी आज़माइश प्रोग्राम देखकर हमारे इल्म में बहुत इजाफा होता है। अल्लाह पाक दोनों टीमों और अब्दुल हबीब भाई को नज़र बद से बचाए। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत शुक्रिया। आइए जनाब, वक्त हुआ है, इंशाल्लाह नेक अमाल का जायजा करेंगे, नातख़्वानी करेंगे और फिर सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में जायज़ा करते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन खोल लीजिए, रसाइल निकाल लीजिए। आइए शुरू करते हैं। अच्छी अच्छी नियतें की, पाँचों नमाजें बाद जमात अदा की, हर नमाज से क़ब्ल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशरा को चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिलाजारी और कहका लगाने से बचे, इमाम शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सबको नेक अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए वक्त हुआ है नात शरीफ का। जी सल्ले अला नबीना सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद में पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद में
थोड़े दिनों की बात है आका हमें बुलाएंगे प्यारे आका हमें बुलाएंगे थोड़े दिनों की बात है पढ़िए सल्ले अला नबीना अला मुहम्मदिन खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफ़ा खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफ़ा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला इसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है किसके आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का वो शानदार कलाम है कि जिसमें सैयदी आला हजरत ने कयामत का जो नक्शा है एक बड़े कमाल अंदाज में इश्क वाले अंदाज में खींचा है कि कयामत के दिन क्या क्या मुश्किलात होंगी गुनाहगार को किस तरह मुश्किलात का सामना होगा मगर अगर वो आशिक रसूल हुआ सरकार अलैहिस्सलाम का उम्मती हुआ तो बेशक मुश्किलें हों भी तो नबी पाक की जब शफात होगी तो मेरे आका उसे कैसे फरिश्तों से छुड़ाकर जन्नत में ले जाएंगे। बहुत खूबसूरत नक्शा है। अगर आप इस कलाम के साथ रहेंगे और इस तसव्वुर में रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नबी पाक से मोहब्बत में भी इजाफा होगा, आखिरत की तैयारी करने का भी जहन बनेगा। अल्लाह करीम हमें नबी पाक की शफात से बरोज़े महशर बहरामंद फरमाए। किसके जलवे की झलक है उजाला क्या है किसके जलवे की झलक है उजाला क्या है हर तरफ दीदार है सकता क्या है मांगे मन मानती मुँह मांगे मुराद मांगे मन मानती मुँह मांगे मुराद देगा मांगता से ये कहना क्या है यहाँ ना है न मांगता से ये कहना क्या है हमें उनके होगे तेरे तो हुए हम तेरे इस बढ़कर तेरी सब सौर वसीला क्या है उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा यूं न फरमा कि तेरा रहम बात की है या अल्लाह उनकी उम्मत ने मुझे बनाया है और
उन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा है। ए अल्लाह, जब मैं उनका उम्मती, उनका गुलाम, तो फिर ये ना फरमा कि तेरा रहमत में हिस्सा क्या है। ए अल्लाह, रहमतुल्लिल आलमीन के सदके अपनी रहमत में हमें हिस्सा अता फरमा और कयामत की मुश्किलों से हम सबको बचा ले। उनकी उम्मत में बनाया, रहमत भेजा, क्यों ना फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है, क्यों ना फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। सदका प्यारे की हया मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है। बेबसी हो जो मुझे पुरसिश आमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूँ उस वक्त तमन्ना क्या है। काश फरियाद मेरी सुन के फरमाए हुजूर, हाँ कोई देखो को क्या शोर है, होगा क्या है। आफत ज़दा है किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, सदमा क्या है। किससे कहता है कि मिला से है खातिर अक़दस पे मलाल, बेकसी के सीगे पूछो कोई गुज़रा क्या है। यूं मलाइक करे यूं मलाइक करे मारूज़ के मुजरिम है, इससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है। सामना कहर कहे दफ्तर आमाल है पेश कर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है। आपसे करता है फरियाद शाह रुसूल, बंदा बेकस है शगारा हम में वक्फा क्या है। कोई दम में गिरफ्तारे बला होता हूँ, आप आ जाए तो क्या खौफ है, खटका क्या है। सुन के ये अर्ज मेरी मगर गरम जोश में आए, मलाइक को इरशाद कहना क्या है। इसको तुम मुरीदे आफात किया चाहते हो, तो आके जरा देखे तमाशा क्या है। उनकी आवाज पे कर उर्दू में साकता शोर, और तड़प कर ये कहूँ अब मुझे परवाह क्या है। तो वो आया मेरा आया
صدقے میں لٹاتے جائیں گے بچ دلاتے جائیں گے پل سے اب بجد کرتے گزر گئے رب سلم سدائے محمد ہم پہ نبی کا سایہ نہیں تم اس کے طرفدار ہو تم اس کے مددگار تم کو نکمے سے نکما نظر آئے اچھے گے اعمال مگر جس کا تمہارا گہے دامن مجھے لے لو بناگے بے کسا تم ہو لو سے فرمائے ادھر آؤ رمایوں سجدنا تم ہو
نے جات گر جائے گا پر یہ نازا کے بندے کا دیکھیں گے سب سام کر ان کا دامن مچل جائے گا لوگو آیا تیرا غامی لوگو آیا تیرا غامی لوگو آیا تیرا غامی لوگو آیا میرا غامی بروز محشر بوقت پرسی پرسی مجھے جو دیکھا فرشتے بولے بولے ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے جنے تو جگہ تمہارے لیے دغن میں زبا تمہارے لیے بدن میں گجا تمہارے لیے ہمائے گواہ تمہارے لیے مجھے بھی بغا تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح وہ سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ تلک پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا حامی میرا غم خار امم گئی جا تن پہ جامے یہ آنا کیا ہے کہ مجھے دامن دس میں چھپا لے سیور حضور اپنے دامن اقدس میں چھپائیں تو پھر کیا ہو پھر تو ڈوڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سیور اور فرمائے ہتھو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ گے ہمارے درکار ایسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں مغموم ہے ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو سغرا کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رحم کے اس سائے دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں تیرے ساتھ اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں تیرے ساتھ بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا سبحان اللہ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں پہ نثار بلبلے باغ مدینہ
تیرا کہنا کیا ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت کلام ہے. اللہ کریم ہم سب کو قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار بھی نصیب فرمائے, قرب بھی نصیب فرمائے, ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے, اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا بھی نصیب فرمائے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. محمد رضا قادری کشمیر سے عرض گزار ہوں. حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حاجی اشفاق اتاری صاحب کو ذہنی آزمائش سیزن 17 کے اندر بطور نعت خواں کب موقع دیا جا رہا ہے؟ ہم تو روز موقع دینے کے لیے تیار ہیں. اشفاق بھائی جب تشریف لائیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری مجلس مزید ان سے رابطہ کرے گی. میں نے براہ راست بھی ان کو عرض کیا کہ آپ 2-3 بار کرم فرمائیں, امید ہے کہ شفقت فرمائیں گے انشاءاللہ. جی کال دیجیے گا. میرا نام شاہزمان اتاری ہے, میں شاپر جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے, اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. عبدالحبیب صاحب آج میں آپ سے ذہنی آزمائش کروں گا. میں ذہنی آزمائش کے کسی سیزن کا کلام پڑھ رہا ہوں, آپ نے بتانا ہے کہ یہ کلام کس سیزن کا ہے. علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا. کیا بات ہے, سبحان. یہ تو واقعی آپ نے پکی ذہنی آزمائش کر لی ہے. میں اسی سوال کو اب حاضرین کی طرف اور ناظرین کی طرف لوٹا دیتا ہوں کہ آپ ذرا تلاش کر کے بتا دیں کہ یہ کون سا سیزن تھا. ابھی ہو سکتا ہے میرا خیال 2-3 سیزن پہلے ہوگا, 14-15 سیزن ہوگا. چلیں انشاءاللہ ایک اور کال دے دیں. میرا نام محمد حسان اتاری ہے. ذہنی آزمائش سیزن 1 کو 11 سال ہو چکے ہیں. میری اور میری فیملی کے لیے مدینے کی دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. اب یہ بھی تھوڑی سی بات ہے, کچھ میسج آئے کہ 2013 میں شروع ہوا, کچھ میسج آئے 2014 میں ہوا. چلے تھوڑی دیر میں کنفرم بھی ہو جائے گا. ایک اور کال دیتے ہیں. میرا نام محمد سعد اتاری ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش کا پہلا ایپیسوڈ 2013 جنوری 15 میں ہوا تھا. چلے تاریخ بھی بتا دیے, 15 جنوری 2013, تو اس حساب سے تو تقریباً 12 سال ہو گئے اس کو. ٹھیک ہے ایک اور کال دیتے ہیں. میں زاہد علی اتاری پورے والا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش کا پہلا جو ہمارا سیزن کا آغاز ہوا تھا وہ جنوری 2013 میں ہوا تھا. دو گواہیاں 2013 کی آ گئی ہیں. چلے جناب بہت شکریہ آپ سب کی کال کا. اب وقت ہوا ہے بچوں کی ویڈیوز دیکھنے کا. حدیث پاک روزانہ ہم بتاتے ہیں اور اس پر ویڈیوز بنا کر آپ بھیجتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ویڈیوز. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان کے انبیاء کرام علیہ السلام چلاتے تھے. جب بھی ایک نبی جاتا تھا تو اس کے بعد دوسرا نبی جاتا تھا, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان کے انبیاء کرام چلاتے تھے. جب ایک نبی جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا, اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جناب آج کی حدیث کی باری ہے, اسے بھی نوٹ کر لیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی, اب میرے بعد نبوت نہیں مگر بشارتیں ہیں. عرض کی گئی بشارتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا اچھا خواب کہ انسان خود دیکھے یا اس کے لیے دوسرے کو دکھایا جائے. یہ حدیث پاک نوٹ کر لیجئے, اور اس کی ویڈیو کل پروگرام شروع ہونے سے پہلے کل دوپہر تک بھیج دیں تاکہ اس کو ایڈٹ کر کے ہم چلا دیں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک اور احادیث کرام کو یاد بھی کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین وقت ہوا ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھیں گے اور مقابلے کو لے کر آگے چلیں گے. جناب ابھی تک پشاور والے آگے ہیں, 26 نمبر چشتیاں کے ہیں, 28 نمبر پشاور والے کے ہیں, مگر یہ 2 سیگمنٹ بعض اوقات پلٹا کھا جاتا ہے مقابلہ. باری ہے خوبصورت سیگمنٹ قرآن کی برکتیں لیتے ہوئے قرآنی معلومات. جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ میں پشاور والوں سے سوال کریں گے, اول قرآن کریم کی تقسیم کتنے طریقوں پر ہوئی؟ اولاً قرآن کریم کی تقسیم کتنے طریقوں پر ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی تقسیم عہد رسالت میں 2 اعتبار سے ہوئی, ایک منزل کے اعتبار سے اور ایک صورتوں کے اعتبار سے. منزل کے اعتبار سے اس لیے کہ 7 پڑھنے والا 7 دن میں قرآن پاک ختم فرمائے, اور 30 صورتوں کے اعتبار سے اس طرح کہ پڑھنے والا 1 ماہ میں قرآن پاک ادا فرمائے. 20
सूरतें या 30 पारे? 30 पारे। जी जनाब, 2 तकसीमें हुई, 30 पारों के लिहाज से, 7 मंजिलों के लिहाज से। कैसे मुबारक लोग थे, 7 दिन में कुरान पढ़ लेते थे, 30 दिन में कुरान पढ़ लेते थे, और आज पूरा पूरा साल गुजर जाता है, लोग कुरान नहीं पढ़ते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान करीम पर नुक्ते एराब, हरकात व सकनात किसने लगाए? नुक्ते एराब, हरकात व सकनात किसने लगाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद पर नुक्ते और एराब, ये मशहूर ये है कि हज़रत हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत मरवान बिन अब्दुल मलिक के हुक्म पर लगवाए, और एक कौल ये है कि हज़रत अबू अल असवद दुइली ताबई ने 69 हिजरी में लगा। हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से ये काम करवाया। एक रिवायत में ये आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक पर मद और वक्फ की अलामात किसने लगाई? नाज़रीन याद रहे कि नबी पाक के दौर में, सहाबा के दौर में कुरान करीम पर नुक्ते, एराब, हरकात और सकनात नहीं थे। ये सब बाद में हुआ और बाद में पढ़ने वालों की आसानी के लिए हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में मद और वक्फ की अलामात खलील बिन अहमद फराइदी ने लगाई। खलील इब्ने अहमद फराइदी ने लगाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान करीम पर रुब, निस्फ, सलासा और रुकू के निशानात कब लगाए गए? कितनी यूनिक मालूमात है। कुरान में हमें पाव के बाद रुबा, जनाब निस्फ, सलासा आता है, और इसी तरह रुकू के जो नंबर्स होते हैं कि कब रुकू कंप्लीट हुआ, ये कब लगाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में रुब, सलासा और ये रुकू, ये हज़रत मामून अब्बासी ने ये काम किया, और हज़रत ये इसके रुकू की मिकदार ये रखी गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तरावी में कुरान मजीद जितना पढ़कर रुकू में जाते थे, रुकू की उतनी मिकदार रखी। और कोई लोग ये कहते हैं कि ये रुकू हज़रत उस्मान की तरफ से हैं और हज़रत उमर की, बल्कि सही कौल ये है कि ये रुकू, ये जो आइन है, ये बल्कि ये जो मामून अब्बासी के दौर में लगवाए गए, और रुकू की मिकदार ये रखी गई कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जितना कुरान मजीद पढ़कर रुकू में जाते थे, रुकू की उतनी मिकदार रखी गई। और ये हाशिये में जो आइन लिखा जाता है, ये रुकू का लिखा जाता है, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये आइन हज़रत उस्मान का है और हज़रत उमर का है। जी, ये जो आइन है, ये एक कौल ये भी है कि हज़रत उस्मान के नाम के आइन की वजह से, देखें ये कितनी नई बात पता चली है, लेकिन सही लफ्ज़ ये है, सही ये है कि ये रुकू का आइन है। और ये हजरत उस्मान तरावी में एक रकत में जितना कुरान तिलावत करते थे उसको रुकू करार दे दिया गया। कैसे लोग थे, कुरान के कैसे आलिम थे, और सुभान अल्लाह ये कितना खूबसूरत निज़ाम आगे बढ़ता चला गया। यहाँ एक और बात भी नाजरीन सीखने को मिलती है कि कुछ लोग ये कहा करते हैं कि जनाब आप ये काम करते हैं तो ये नबी प्यारे आका के दौर में नहीं था, साहबा के दौर में नहीं था, अब बाद में कैसे कर सकते हैं, तो ये तो बिदत हो गई। तो जनाब बिदअत की 2 किस्में हैं, एक बिदत बुरी बिदत होती है, एक बिदत अच्छी बिदत होती है। अब देखिए जितनी बातें हमने की हैं कि कुरान करीम में ना हरकात थी, ना ज़बर ज़ेर पेश था, ना नुक्ते थे, ना रुकू था, ना रुबो था, ना सुलासा था, ये सब बाद में हुआ, लेकिन ये अच्छा काम था, अच्छी बिदत थी कि बाद में आने वालों के लिए आसानी हो गई। तो ये बात वाज़े हो गई कि अगर मुसलमानों की आसानी के लिए या दीन का काम फैलाने के लिए कोई अच्छी चीज़ का इजाफा किया जाए जो शरीयत से टकराती ना हो, तो ये बिदअत ज़रूर है, मगर ये बिदअत हसना है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में बहुत सारी चीज़ों में हो रही है, पीछे भी हुई है और आइंदा भी होती रहेगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आखिरी सेगमेंट जाने से पहले बताया जा रहा है कि कॉल्स बहुत तेजी से, ज़ाहिर है जितनी कॉल सुनाते रहते हैं कॉल ज़्यादा आती रहती हैं, 1-2 कॉल लेते हैं और फिर आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे। अब्दुल हबीब भाई जो प्रोग्राम करते हैं और जो इनके जो बोलते हैं मीठी मीठी जबान में बोलते हैं, मैं प्रोग्राम सुन के बहुत मुतासिर हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। आप दुआ भी किया करें, अल्लाह मुझे इखलास भी दे और अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। मोज़म्बिक अफ्रीका से कामरान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश सीजन 12 में पेशावर की टीम की नुमाइंदगी का मौका मिला था और आज अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर की टीम में मेरे भतीजे हसन रजा शामिल हैं जो कि जामिअतुल मदीना पेशावर के स्टूडेंट भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा दावत इस्लामी की ये खासियत है कि न सिर्फ अपने जामिअतुल मदीना के स्टूडेंट्स को बल्कि दीगर आशिकान रसूल के इदारों से भी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी, जहाँ पे भी टैलेंट होता है अल्हम्दुलिल्लाह उनको उजागर किया जाता है, टीम में शमूलियत का मौका मिलता है। माशाअल्लाह। चले जनाब,
मोज़म्बिक पहुंच गए सीजन 12 शिरकत करके। अब देखें हसन भाई मदीने पहुंचते हैं कि नहीं। दुआ करें अल्लाह इनको और हम सबको मदीना दिखाए। नाज़रीन आइए चलते स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर आखिरी सेगमेंट शुरू करते हैं। 30 नंबर है चिश्तियां के, 32 नंबर है पेशावर के। आखिरी सेगमेंट फैसला कर देगा चिश्तियां या पेशावर। सेगमेंट का नाम है सफर है मगर अकेले। दोनों तरफ के इस्लामी भाई एक दूसरे की टीम में जाएंगे और इसलिए जाएंगे कि सफर अकेले हो सके, दरमियान में खड़े रहेंगे कि मशवरा ना हो सके। अब बारी है पेशावर वालों की। दोनों टीमें सिर्फ सही कहेंगे और गलत कहेंगे। हसन भाई से सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। मस्जिद जहराना से एहराम बांधने के अवाम को लोग बड़ा उम्रा कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम अब्दुल्ला है। सूरह इखलास को सूरह शाफिया भी कहा जाता है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के सगे भाई हैं। सही जनाब आखिरी सवाल में गलत, उन्होंने गलत कहा था, चौथे में गलत कहा था और आखिरी में इन्होंने मिस्टेक कर ली है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के सगे भाई हैं, ये बात गलत है। अच्छा जनाब 4 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। अब बारी है अहमद यार भाई की। चिश्तियां से ताल्लुक है। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का मजार यमन में नहीं है। सही। काबे की छत पर जो परनाला है उसे मुल्तजम कहते हैं। गलत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मजार मुबारक फलस्तीन में है। गलत। तयम्मुम के 4 फराइज नहीं है। सही। पतोकी को फूलों का शहर कहा जाता है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है जनाब। मुकाबला और करीब आ गया है। अब बारी फिर पेशावर वालों की। अताउल्लाह साहब से सवाल होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे। गलत। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की तारीख मिसाल 26 सफर शरीफ है। गलत। जो साहिब शान काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए उसमें बरकत नहीं होती। सही। मछली के अंडे खाना जायज है। जल्दी करें। गलत। इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद का नाम नोमान है। सही। जनाब इमाम आजम के वालिद का नाम नोमान ही है और कभी मौका मिला तो हम आपको मछली के अंडे खिलाएंगे क्योंकि वो जायज है। आपसे 2 गलतियां हो गई हैं। तो अब बारी है हसन रजा साहब की। मौका है चिश्तियां को फिर मुकाबले में वापस आने का। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी शहजादी का नाम ज़ैनब है। सही। हजरत हसन बिन साबित शायर रसूल हैं। सही। यारे गार हजरत उमर फारूक को नहीं कहा जाता। सही। मस्जिद कुबा मदीने में है। सही। हज माह जुल्हिज्जा में अदा किया जाता है। सही। जनाब एक गलती आप कर गए हैं कि जनाब सरकार अलैहिस्सलाम की छोटी शहजादी का नाम ज़ैनब है, ये बात गलत थी। अब जनाब इसका मतलब ये हुआ मुकाबला बराबर हो गया है। अल्लाह ये ज़हनी आजमाइश कितनी बार हमारी दिलों की धड़कन तेज करेगा। यानी अब मुईज अली और मोहम्मद अब्दुल्ला के दरमियान ये फैसला होगा कि कौन सी टीम आगे जाएगी। जी इससे पहले कि हम इस टेंस सिचुएशन को आगे लेके चले एक सवाल हाजरीन से कर लेते हैं। आप बैठ के पानी पी लीजिए, हमारी मजलिस भी कुछ चेक करना चाह रही है। जनाब सवाल हाजरीन से कर लें। जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई वालदा का नाम बताएं। उन्होंने क्या जवाब दिया था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजरत बीबी आमना रज़ी अल्लाह। अच्छा जी। जी सवाल क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई वालदा का नाम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलाम साबिर अत्तारी। हजरत सैयदा हलीमा सादी रज़ियल्लाहु ताला। माशाअल्लाह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दिलचस्प मालूमात हिस्सा दो। चले जनाब दोनों स्लाइड पे खड़े हो जाएं। एक दौरान सवाल ज़ाहिर बड़ा स्पीड में राउंड होता है तो मुझसे भी सबकत लिसानी हुई, गलती हुई। इमाम आज़म अबू हनीफा के वालिद का नाम नोमान नहीं बल्कि उनके वालिद का नाम साबित है। नोमान बिन साबित ये हजरत इमाम आज़म का पूरा नाम है। जनाब अब 2 इस्लामी भाई रह गए हैं और जो फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम जो है वो आगे जा रही है। बारी है मुईज अली पेशावर से। जनाब आयतल कुर्सी एक मुकम्मल सूरत है। गलत। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का एक लक़ब अतीक है। गलत। खतीब के लिए खुतबा देते वक्त काबे को पीठ करना सुन्नत है। सही। हजरत आयशा हजरत उमर बिन खत्ताब की साहबजादी नहीं थी। सही। मस्जिद कुबा को बैतुल मुक़द्दस से खास निस्बत हासिल है। गलत।
पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल जनाब, पेशावर वालों ने अब तक के लिए अपनी सीट तो महफूज कर ली है, ये कम से कम यहां से हार नहीं सकते। अब अगर एक भी गलती चिश्तिया वाले करते हैं तो चिश्तिया वाले पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर ये भी पांचों सही जवाब दे देते हैं तो फिर क्या करना होगा ये अब हमने देखना होगा। जनाब अब बारी है हमारे चिश्तिया के मोहम्मद अब्दुल्ला की। अब देखना यह है कि उनसे क्या सवाल होंगे और ये क्या जवाब देंगे। जनाब हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिजाई वालिदा हैं। सही। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला की कुन्नियत उम्मे सलिमा है। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही गारे सौर में नाजिल हुई। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम हजरत आयशा को प्यार से हुबैरा कहकर पुकारा करते थे। सही। जबूर शरीफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। सही। नाजरीन आपको मालूम है क्या हुआ है, इन्होंने 5 में से 4 सही जवाब दिए हैं। आज का मुकाबला पेशावर वाले जीत गए हैं। बड़ी प्यारी कोशिश की चिश्तिया वालों ने, कई नंबर का फर्क था और आखिर में बराबर भी हो गए, लेकिन पेशावर वालों ने कमाल किया, आगे निकल गए हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। चिश्तिया वाले मजबूत तैयारी करके कल आइएगा। कल नाजरीन 2 नहीं बल्कि 3 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा जो इंशाअल्लाह आप देख सकेंगे। अब वक्त हुआ है आपसे कुरानदाजी भी करनी है, यहाँ मौजूद हाजरीन से भी कुरानदाजी करनी है। जनाब डिजिटल कुरानदाजी रेडी हो तो हमें बताइएगा। चले जनाब, यहाँ मौजूद हाजरीन की पहले हम कुरानदाजी करेंगे। और आज सभी इस्लामी भाइयों ने बड़ा कमाल किया, मगर मेरा ख्याल है पेशावर के अब्दुल्ला भाई, क्योंकि जो प्रेशर में वो थे, कहाँ गए, सॉरी मुइज भाई, बड़ी जबरदस्त इन्होंने आखिर में 5 सवाब सही देकर अपनी टीम को किनारे लगाया। बाकी पूरी टीम, सारी टीमें बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। नाज़रीन एक सवाल आपसे किया गया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला की दादी का नाम बताएं, तो उनकी दादी का नाम अमीना था। तो आइए देखते हैं, कुछ नाम हम बयान करेंगे और फिर कुरानदाजी। हमारे पास जो नाम है उनमें फैज़ान बिनते अब्दुल लतीफ़ चिश्तिया बिनते अली कराची, मोहम्मद शहाबुद्दीन बिनते रमज़ान अत्तारी, सुफियान रज़ा अत्तारी बिनते नूर बिनते यामीन अत्तारिया बिनते अब्दुल क़य्यूम अत्तारिया, कोट गुलाम मोहम्मद रिजवान अत्तारी उम्मे माबद गुज्जर खान। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके दरमियान कुरानदाजी हो गई और जिनका नाम आया है वो है कराची से बिनते अली। आप अपने महरम के जरिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफा। एक सवाल जो नाज़रीन से हम करेंगे, जो SMS के जरिए आप जवाब देंगे, हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला का विसाल कब हुआ, ये आपने बताना है। और ये आपको जवाब कहाँ से मिलेगा? मकतबतुल मदीना की किताब है इस्लामी महीनों के फ़ज़ाइल, वहाँ से आप तलाश कीजिए और हमें जवाब दीजिए। आइए आपको फाइनल स्कोर बोर्ड दिखाते हैं, किस तरह मुकाबला चलते चलते यहाँ तक पहुँचा। और जनाब 1 नंबर के फ़र्क से चिश्तिया वाले 43 और 44 नंबर पेशावर के। हालांकि चिश्तिया ने आखिरी सेगमेंट में 13 नंबर हासिल किए। जरा दोबारा दिखाइएगा स्कोर बोर्ड। ये बड़ी कमाल की बात है कि लास्ट सेगमेंट में चिश्तिया ने पेशावर से 1 नंबर ज्यादा लिया। जरा स्कोर बोर्ड दिखाइए, लेकिन चूंकि पीछे नंबर कम थे इसलिए पेशावर वाले अपनी सीट सिक्योर कर गए। चिश्तिया वाले तैयारी करके कल आए। आइए नाजरीन, अब क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी आपको दिखाते हैं। जनाब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कितना अरसा कयाम फरमाया? 100 साल, 250 साल, 1000 साल या 500 साल? 500 साल सही जवाब था। ये 5 आईडीज नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हमसे रब्ता करें तो आप तक तोहफा पहुंचाया जाएगा। कल 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है, किसका किसके साथ है आइए दिखाते हैं। चिश्तिया स्वात इस्लामाबाद। जनाब उम्मीद है बड़ा मुकाबला होगा, जरूर आपने कल हमारे साथ शामिल रहना है। अब वक्त हुआ है नाजरीन, बड़ा गिफ्ट किसको चाहिए? क्या बात है, चले देखें, कुरानदाजी कर लेते हैं इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, देखें किसका नाम आता है। मारफतुल कुरान, लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा कुरान आप घर ले जाएं, घर पे हासिल करें, पढ़ने में कुरान आसान हो जाता है। 5173 आ जाए भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले अब बच्चों की कुरानदाजी। फाइव 5116 आ जाए, आप भी आ जाए माशाअल्लाह, तोहफा ले लें माशाअल्लाह। क्या बात है, चले माशाअल्लाह
अब पढ़ना है इसको, ठीक है, पूरा इंशाल्लाह कुरान पाक लफ्ज ब लफ्ज पढ़े भी, अपने घर वालों को भी पढ़ाएं, इसकी बरकतें लुटे। क्या करते हैं आप? माशाल्लाह मदरसा पढ़ाते हैं। चले भाई, कारी साहब को मिल गया कुरान पाक, ये तो बड़ा अच्छा हो गया माशाल्लाह। चले जरा आप अदब और शौक के साथ सिरात इस्लाम के लिए खड़े हो जाए। माशाल्लाह ये आपका तोहफा। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। जिन्नों मलाइक तेरे गुलाम, सबसे सिवा है तेरा मकाम। यासीन ताहा तेरे ही नाम, यासीन ताहा तेरे ही नाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। सबको मुयस्सर हो ये मकाम, पहुँचे मदीने बनकर गुलाम। पढ़ते दुरूद और पढ़ते सलाम, पढ़ते दुरूद और पढ़ते सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम। तेरी सना है मेरा नसीब, कुर्बान तुझ पर जाने अदीब। तुझ पर तसद्दुक़ आलम तमाम, तुझ पर तसद्दुक़ आलम तमाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। क्या तस्वीर क्या क्या मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फिर ज़हनी आज़माइश आ गया, आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। अल इल्मु